Welcome to all in SPS study. Now come to our topic, that is refractive index. In previous video we have learned about refraction and laws of refraction. Now we are going to learn about refractive index. Refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to its speed in a specific medium. A specific medium means the light is just going into a medium, that is specific medium. Here we see that n is the refractive index of light, okay. C is the speed of light in vacuum and v is the speed of light that is specific medium. Means this formula n is equal to c by v is for the absolute refractive index. When we were just reading about refraction, okay, refraction, in that case we have learned that the phenomena refraction is associated with टू मीडियम, ओके. मतलब जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो जो है दो माध्यमों में होता है. तो इट इज़ क्लियर दैट व्हेन देयर इज टू मीडियम देन देयर विल बी टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, ओके. तो दैट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू the speed of light in second medium, that ratio is the refractive index. Here another question arises that you can say that when we were just talking about Snell's law, okay, जब हम लोग स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे तो इन दैट केस वी हैव लर्न अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ एंगल्स, ओके. तो हियर वी सी दैट अगेन रिवाइज्ड स्नेल्स लॉ व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम इनटू सेकेंड मीडियम, ओके. तो हियर वी सी दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मीन्स n1 विद रिस्पेक्ट टू n2 मीन्स सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ θ2 अपॉन साइन ऑफ θ1 मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन एंगल ऑफ incidence, okay. When we this is the for the refractive index of first medium, but when we just talking about refractive index of second medium with respect to first medium, then it will be n2 upon n1 upon sin θ1 upon sin θ2, okay. तो means the both formula means the refractive index in term of angles, the refractive index in term of speed, both are equivalent. Here we see that just द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम मीन्स जो बाद में लिखा होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, एंड जो पहले लिखा होता है इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में. हियर वी सी दैट n1 n2 मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा c1 अपॉन c2. c1 मीन्स the speed of light in first medium, c2 means the speed of light into second medium. Sin of θ1 मतलब the angle of incident, okay. Sin of θ2 means angle of refraction. Here another thing we have to understand that why it is written that c1 upon c2, it should be c2 upon c1, it may be, okay. So for this we have clear in the last of video, okay. Now come to what is the real meaning of refractive index, what is the usage of refractive index. So refractive index is the measure of bending of ray of light when it passes from one medium to another medium. Refractive index tell us that when a ray of light passes from one medium to another medium, तो what are the chances of light to bending, मतलब कोई भी प्रकाश की किरण कितना बेंड करेगी, बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कितना करेगी, वो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है, ओके. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किससे रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट, ओके, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी. हियर द क्वेश्चन arises that what is optical density, okay. तो generally we learn about density, but here we see that the term optical density because the thing that we are reading that is ऑप्टिक्स, हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो द डेंसिटी रिलेटेड विद ऑप्टिक्स दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी. तो ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच द एनर्जी द लाइट हैव, मतलब प्रकाश के पास जो ऊर्जा होती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. तो जो किसी भी मीडियम के पार्टिकल, किसी मीडियम के जो आइटम्स हैं वो लाइट से कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कितना सोख ले रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी. हियर इट मीन्स दैट द मीडियम विच इज रेयर, ओके. तो जब कोई भी माध्यम रेयर होगा तो इट इज़ क्लियर दैट देयर विल बी लेस नंबर ऑफ आइटम्स, बट व्हेन अ मीडियम इज डेंसर देन देयर विल बी मोर नंबर ऑफ आइटम्स.
ठीक है। तो यहाँ से जो समझना है, जब नंबर ऑफ एटम कम होंगे मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, और जब नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अब समझना है, जब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है मतलब इस प्रकाश जो है उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, प्रकाश की जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। किस केस में? डेंसर वाले केस में, रेयर की अपेक्षा। ओके, जब उसकी एनर्जी ज़्यादा खींच ली जाएगी मतलब उसमें जो उसको ज़्यादा ताकत लगाने पड़ेगी, तो इसका मतलब वो है जो ज़्यादा बेंड करेगा। ओके, और इन केस ऑफ रेयर मीडियम देयर विल बी लेस नंबर ऑफ एटम, तो देयर विल बी लेस ऑप्टिकल डेंसिटी। मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी के। किसी भी माध्यम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अब इसमें समझना क्या है, अगर जिस जो मीडियम है अगर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस माध्यम में प्रकाश की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी विथ लेस। जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही कम उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, तो हियर वी सी दैट म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, कहीं कहीं पे म्यू पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शाते हैं और कहीं कहीं यन से। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो दिस इज द रीजन, हियर वी सी दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1v मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब समझते हैं। Here we see that the ray of light coming from air and enter into glass. This is the glass. Okay. अब हमको इसको जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। ओके, मतलब अगर हम ग्लास का निकाल रहे हैं तो ग्लास जो है नीचे रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो नीचे होगी। ओके, जो चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो हमारा जो है ऊपर होगा। ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हियर वी सी दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। तो एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 lakhs kilometer per second and speed of light in glass is 2 lakhs kilometer per second. So when here see that the zeros will be cancelled and it will be equal to 3/2. 3/2 is equal to 1.50. Here we see that the unit of light means kilometer per second is cancelled. Okay, so here we see that the refractive index is dimensionless quantity. Okay, I think you all will be eligible to understand this concept. Okay, thanks for watching video. Okay.